Hello, good morning, students of class 9. As you know, today we are facing some audio related problem in Meet app. So we have just cancelled. I have just cancelled the class. So I am uploading this video. Watch it carefully. First of all, let's begin with what I have taught in last session. This is the map of Myanmar. Again, I am repeating. You can see it here. Just a minute, please hold on. You can see in the map, here is China, India, Vietnam, all the countries are showing there. And what they are saying, Myanmar also got independent. Just we will go through it. Myanmar also got independent from British rule after 1 year in 1948. Okay. It has many mineral resources. You can see in this picture. This area is dense forest area. Assam, Manipur and this area of Myanmar. So Myanmar is a densely forest area, so it has many forest minerals like teak, rubber and timber. Also minerals like tin and semi-precious stones or saffron and ruby are found in Myanmar. So it got independence from British rule in 1940, and then after it adopted a parliamentary system, just like us, a two-level of parliamentary system like Lok Sabha and Rajya Sabha in India, or state government or central government. It also started like that. But firstly, the world hoped that Myanmar would emerge as a democratic nation, as just like India. But the country did not have a strong political parties. But it failed to achieve its goals because due to four reasons. First, it does not have a good political parties, just like India. There are many political parties in India like Congress and before independence, Muslim League, Hindu nationalist parties. But Myanmar does not have this type of political parties. So it lacks political parties, lacks national leaders and political consciousness also. Political consciousness मतलब जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता, because education is low in Myanmar. So it lacks political consciousness. So it could not sustain in a democratic path. So coming to next topic, democracy in Myanmar. As you know that what I have told you, the main leader of Myanmar is this Burmese leader Aung San. He is the father of the nation of that country. And after independence in 1941, he was assassinated after 6 months. Before independence, different ethnic groups of Myanmar reached an agreement at the time of independence that they will give all the fundamental rights to the people, to its tribal people and to the minorities communities also. An agreement was reached between them. And in that agreement, they have conducted 3 elections in 1951, 56 and 60s. Till 60s, it is going under a democratic process. But after 1960, let's move to the next page. Myanmar faced military rule. Here it is military rule in Myanmar, started in 1962. Okay, because Myanmar has some basic political problems, as I have just repeated: lack of political parties, lack of political consciousness, and constitutional institutions. Here it is given constitutional institution. That means courts. It does not have a good infrastructure of courts or this type of constitutional institutions. So it gave an opportunity for the military to rise into the powers, and military rulers established a parallel government in the border regions of Myanmar and in the tribal regions of Myanmar, like जंगल के इलाके जहाँ पे मिलिट्री वाले का पोस्टिंग रहता था, वहाँ पे उन्होंने अपना पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चालू कर दिया, और बॉर्डर एरिया में जहाँ पे मिलिट्री वाले रहते हैं वहाँ पे भी उन्होंने अपना गवर्नमेंट चलाना चालू कर दिया. ठीक है. फर्स्ट मिलिट्री रूलर्स अंडर द जनरल नी विंग. ही इज द जनरल हु टुक द कूप, हु डिड द कूप. जनरल नी विंग, इन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो गवर्नमेंट था उसको डिरेल कर दिया, उसको सत्ता से हटा के 1962 में कंट्रोल में ले लिया कंट्री को, रूल को. ठीक है. तो ट्राइबल्स लोग इसका विरोध किए, ट्राइबल सेक्शन कम्युनिटी, दे गॉट सम अपराइजिंग्स फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज, बट इन्होंने उन ट्राइबल अपराइजिंग्स को कंट्रोल कर लिया थ्रू स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के जैसे तरीके रहते हैं, है ना.
उससे इन्होंने उस अपराइजिंग को दबा दिया और वो मिलिट्री रूल वहाँ पे आ गया। पूरी तरह म्यांमार में मिलिट्री रूल आ गया, उन्होंने ट्राइबल्स को सरप्रेस कर दिया। आफ्टर दैट फर्स्ट, जैसे लीबिया में भी हम लोग देखें, मिलिट्री जब भी रूल में आता है तो दे डिड सम गुड। फर्स्ट कुछ सालों तक कुछ ऐसे काम करते हैं टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल एंड टू गेन द सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो इन्होंने 62 से लेकर 65 तक कुछ ऐसे रूल्स बनाए सेम लाइक लीबिया, जिससे वहाँ पे लोगों का भरोसा जीता सके। सबसे पहले इन्होंने बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया, इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज्ड किया एंड मिनरल्स रिसोर्सेज को नेशनलाइज्ड किया। सो अगर इनको नेशनलाइज्ड कर देने का मतलब है ये सभी चीज़ें मिलिट्री रूलर के अंडर में चले गए, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी हो गया। तो मिलिट्री में तो गवर्नमेंट बैठा हुआ है, तो मिलिट्री के रूलर्स के अंडर में चले गए। उसके बाद इन्होंने 1962 से लेकर 65 तक कुछ ऐसे लॉज बनाए जो कि कंट्रोल किए लैंडलॉर्ड्स, मतलब जमींदारी सिस्टम को इन्होंने कंट्रोल किया, ठीक है। और जो लैंडलेस किसान थे, लैंडलेस फार्मर्स को उन्होंने लैंड और प्रॉपर्टी के लिए स्मॉल पीसेंट्स को कुछ राइट्स दिए, जैसे कि इंडिया में भी दिया गया है। इन्होंने लैंडलेस किसानों को या स्मॉल पीसेंट्स के लिए कुछ अच्छे काम किए। सो दे गॉट द सपोर्ट ऑफ दिस क्लास। इकोनॉमिकली जो क्लास वीक रहता है उनका सपोर्ट इनको मिल गया। लेकिन आफ्टर दैट 65 के बाद से म्यांमार में क्या हुआ, म्यांमार के रूलर्स ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लिया, माइंस और इंडस्ट्रीज़ को कॉन्फिडेंस में लिया। लेकिन जैसे कि हम लोग लीबिया में देखें कि लीबिया में एक वेलफेयर स्टेट के हिसाब से लीबिया ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था म्यांमार, और वहाँ पे इट बिकेम ए रिच स्टेट। म्यांमार इज ऑल्सो ए पुअर कंट्री सेम लाइक लीबिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बट लीबिया बिकेम ए रिच कंट्री अंडर मिलिट्री रूल। बट यहाँ पे उल्टा हो गया, ये और भी गरीब होते चले गया और इसका इकोनॉमिक जो है इम्प्रोवाइज्ड हो गया, इकोनॉमिकली इम्प्रोवाइज्ड हो गया। वहाँ के लोग और गरीब से गरीब होते चले गए। क्यों? क्योंकि पूरा पैसा जो है, जो माइंस और ये जो इंडस्ट्रीज़ के पैसे जो है वो सिर्फ मिलिट्री रूलर्स को ही इसका बेनिफिट मिल रहा था, ठीक है। प्रॉपर्टी इतना ज़्यादा हो गया वहाँ पे कि छोटे जो किसान थे, जो गरीब लोग थे, प्रॉपर्टी फोर्स द पीसेंट्स टू वर्क ऑन द फार्म्स विच वर नाउ रन बाय द आर्मी। तो पहली बात तो उन्होंने जो आर्मी के खेत थे वहाँ पे इन्होंने किसान लोग अपने बच्चों को खुद भी जाके काम करना चालू किया और अपने बच्चों को भी उन फार्म्स में काम कराना उनके लिए मजबूरी हो गया, ठीक है। उनके बच्चे को फोर्स किया गया कि वो बॉन्डेज लेबर तक के लिए काम करे आर्मी के अंडर में। वुमेंस बच्चों को फोर्स किया गया बंधुआ मजदूरी करवाने के लिए। म्यांमार के मिलिट्री गवर्नमेंट के ऊपर कई सारे ह्यूमन वायलेशंस के वो बने, चार्जेस लगे, ठीक है। एंड पीपल, लोगों को वहाँ से घर से निकाल दिया गया, इविक्टेड फ्रॉम देयर होम्स एंड फोर्स टू वर्क एज ए बॉन्डेड लेबर। तो वहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती घर से निकाल के बॉन्डेड लेबर के लिए काम करना पड़ा। और चाइल्ड लेबर वॉज ऑल्सो हार्शली एक्सप्लॉइटेड। वहाँ पे बच्चे लोगों को भी हार्शली एक्सप्लॉइट करने लगे वहाँ पे मिलिट्री जनरल्स लोग, ठीक है। तो इसका ऐसे 20-30 साल तक चलते रहा। लेकिन इसका इसका एक प्रोटेस्ट हुआ, एक स्टूडेंट अपराइजिंग हुआ इन द ईयर 1988 में, ठीक है। ये स्टूडेंट अपराइजिंग कॉलेज स्टूडेंट्स लोग किए थे। एक मेजर अपराइजिंग हुआ था इन द ईयर 1988, जिसको ब्रूटली सप्रेस कर दिया गया बाय द आर्मी, जिसमें 1000 ऑफ प्रोटेस्टर्स वर किल्ड, कई लोगों को मार दिया, ठीक है। फॉलोइंग द प्रोटेस्ट वन आर्मी के फैक्शन ने इन्होंने गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया। कुछ आर्मी वाले के पास तो थे ही, मतलब आर्मी में तो पार्टीशन हो गया। कुछ आर्मी वाले ये स्टूडेंट्स लोगों के साथ आ गए और इन्होंने प्रॉमिस किया फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम लोग इलेक्शंस होल्ड कराएंगे, ठीक है। और ये जो अपराइजिंग हुआ था इसमें जो मेन लीडर थी शी इज़ दिस लेडी, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ दिस लेडी, शी इज़ आंग सान सू की, ए नोबेल प्राइज़ विनर फॉर पीस, ठीक है। ये डॉटर थी आंग सान, जो कि उनका फादर ऑफ द नेशन है, उसकी बेटी है। और इन्होंने इस मूवमेंट को लॉन्च किया। तो बर्मा का स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी में ये एक की फिगर बन गई, ये एक इम्पॉर्टेंट लेडी सामने उभर के आई, ठीक है। ओके, आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो राइट नाउ। आई एम जस्ट सेंडिंग अनदर वीडियो। थैंक फॉर लिसनिंग टू मी।